آپ جو کہہ رہے ہیں آٹونومس ہو, ایک الگ ہو, اس میں رول کون, سیلف رول جب تک ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوا کون پارٹی کے, یہی ہمارا کہنا ہے, یہی ہمارا کہنا ہے. میں نے بارہا شاید آپ کے نوٹس میں ہو, میں نے مختلف انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے بھائی پیپل پارٹی, مسلم لیگ, دوسرے لوگ الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس وقت تک تو الحق نہیں ہے نا, یہ تو ایسی منافقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں. مثلا اس وقت ایجنسیوں کا دباؤ ہے, لوگ نوکری کرتے ہیں پاکستان کے حدود اربع کے اندر, ہمیں رہنا ہے, پرابلم ہے, تو ڈر کے مارے, خوف کے مارے یا لالچ میں ہم اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو منافقت ہو گئی نا, یہ تو وفاداری نہیں ہو گئی, یہ تو تابعداری ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تابعدار اور وفادار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو وفادار ہو, تابعدار نہ ہو کہ وقتی طور پر ہم اس کو منافقت کے ساتھ رہے اور جب حالات چینج ہو جائیں گے تو ہم اس کے خلاف ہی کارروائی ڈالیں. یہ ہماری کوئی عزائم نہیں ہے. اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ الحاق کرنا ہے, ہوا نہیں ہے. الحاق کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے جو اسلام اور دنیا کے اندر ہے. اس میں ایجاب و قبول, گین اینڈ ایکسیپٹ کا تصور ہے. اب کوئی بھی نکاح دلہا دلہن کے درمیان 2 وکیل اور 4 گواہوں کے بغیر ممکن نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. اب پاکستان کی طرف سے ان کا چیف ایگزیکٹو جو ہے, ان کا صدر پاکستان جو ہے وہ وکیل ہے, ان کی پارلیمنٹ کے 2 ایوان جو ہے وہ 2 گواہ ہے. ہماری طرف سے کون آئے گا؟ نہ ہمارے 2 گواہ ہے, نہ ہمارا وکیل ہے. اس لیے اب آزاد کشمیر کی طرف سے آئے گا 100 کارڈ ہی صحیح, لیکن صدر آزاد کشمیر ہے, اسمبلی ہے, کونسل. ہمارے پاس بھی ایک کونسل اسمبلی بنی ہے, اس کو بھی انہانس کر کے آزاد کشمیر کی اس پر لے جائے. پھر ایک قرارداد آئے گی الحاق کے لیے بھی گلگت بلتستان کی طرف سے, اسمبلی سے پاس ہوگی, اور گلگت کا صدر جو ہے وہ پاکستان کے ایوان میں بھیجے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہاں کی پارلیمنٹ, اسلام آباد کی پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی, دونوں صدور بیٹھ کر دستخط کریں گے, تو دنیا مانے گی کہ ان کا آپس میں الحاق ہوا, نکاح ہوا. ٹھیک ہے نا. اس پروسیس کے بغیر الحاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس علاقے کو اس لیول پر لایا جائے کہ جس لیول پر فیصلے ہو سکے, اس کے اوپر فیصلے ٹھونسا نہ جائے. کہنے کا مقصد, پہلے سوال کا جواب میں بھی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے, اور بی این ایف کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے. بی این ایف کوئی کسی سے محض نفرت کی بنیاد پر یا کسی سے محبت کی بنیاد پر اسٹیبلش نہیں ہے, بلکہ حقائق کی بنیاد پر جو صحیح ہو سکتا ہے, جس طرح وہ کام ہو سکتا ہے, وہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ڈیسیجن آپ نے کیسے لے لیا کہ سسٹم کا حصہ رہ کے یہ ساری چیزیں؟ اچھا, اس میں چیزیں یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے بارہا پوچھا بھی گیا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش بھی کی ہے. پالیٹکس کے اندر اس کا ڈیسٹینیشن, آخری منزل جو ہوتا ہے وہ عوام کے درمیان ہی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الیکشنز کے اندر جانے کی جہاں تک بات ہے, یہ سن 2010 میں ہم نے 10 سے بھی پہلے ہم نے 10 میں نہیں, 7 میں ہم نے 10 سال پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اکیلا الیکشن میں نہیں گیا ہوں. اس سے قبل بھی ہماری جماعت کے لوگ, ہماری پارٹی کا آدمی جو ہے وہ گلگت میونسپل کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, گاکوچ میونسپل کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے, اچھا ڈسٹرکٹ کونسلوں میں ہمارے وائس چیئرمینز رہے ہیں, یونین کونسلوں کے چیئرمین رہے ہیں, ممبر رہے ہیں. یہ فیصلہ آج کا نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جناب عالی کہ جو سیاست ہم کرتے ہیں یہ جا کے آخر اس کے ساتھ کیا کہیں گے, پبلک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی ٹائم الیکشن پروسیس سے گزرنا ہے, کسی نہ کسی ٹائم آگے چل کر بھی. دوسری بات یہ کہ دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں جناب عالی کہ ان کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے, یہ بکواس کرتے ہیں, یہ بے روزگار اور فرسٹریٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کون سا پیمانہ ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں؟ کیا جلسے کر کے ان کے تصویریں نکال کے بتانے سے یہ کوئی اتھینٹک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. طریقہ ہی الیکشن ہے, چاہے وہ ڈکو سلو ہو, چاہے وہ 2 نمبر ہو, وہ غلط ہو, وہ جو بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہم اس پروسیس میں جائیں. دوسری بات یہ کہ ہم کوئی ٹیررسٹ تنظیم نہیں ہے, ہم فائٹنگ فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے تبدیلی چاہتے ہیں. تو پولیٹیکل پروسیس سے تبدیلی چاہنے والا ہر شخص جو ہے ماضی میں ہر ملک کے اندر آج بھی وہ الیکشن کے پروسیس سے ہی گزرتا ہے. اگر گاندھی جی بھی ہندوستان کے اندر کام کیا تو وہ الیکشن سے گزرا, قائد اعظم بھی الیکشن سے گزرا, اور کسی کا بھی نام لیں گے تو یہ ہمارے ارد گرد تو یہ لوگ ہیں وہ الیکشن سے ہی گزرے. ٹھیک ہے. ہم کوئی طالبان کی طرح جو ہے ہم کوئی فائٹنگ فورس نہیں ہے کہ ہم گن پوائنٹ پر جو ہے اپنی چیزیں منوا لیں, اور نہ اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم الیکشن میں گئے, اور
हमें कोई तकलीफ नहीं है इलेक्शन में जाने में। हमें पहले से ही पता था कि न ये असम्बलियाँ डिलीवर कर सकती है, न ये सिस्टम से, अगर सिस्टम भी सही है, असम्बलियाँ सारी सही है, तो फिर हमारा ये शोर शराबा करने की जरूरत ही क्या है? ये तो सही नहीं है, ठीक है ना? फिर भी इसके खिलाफ लड़ना है। तो ये लड़ाई हम जहां गढ़ीबाग में लड़ते थे, वही लड़ाई हम चिनारबाग में भी लड़ रहे हैं। अगर आप ये देखें कि पैरामीटर्स के अंदर बैठ के जबकि बात करनी होती है असेंबली में, एक टीचर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह जो है वो स्पीकर से इजाजत लेके बात करनी होती है, एक सिस्टम के अंदर बात करनी होती है, सिस्टम से बाहर बात भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि जो कुछ एक असेंबली के अंदर बैठ के कोई मेंबर कह सकता है वो मैं कह चुका हूं, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी था, और हम ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली कि पब्लिक हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इलेक्शन जीतना सरप्राइज आपके लिए नहीं था? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं था। अच्छा, सरप्राइज की जहां तक बात करेंगे, वो सरप्राइज इसलिए था कि साउथ एशिया के अंदर कोई एक आध दूसरे लोग हो जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़के असेंबली में गए हो। मैं वाहिद अकेला आदमी हूं इंडियन साइड के कश्मीर में, पाकिस्तानी साइड के कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बहुत सारे इलाकों के अंदर की जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़के पब्लिक ने असेंबली भेजा है, और इस पे मुझे फख्र है। बेशक मेरे मुखालिफिन कुछ भी कहते हो, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, कि उन्होंने कितना मेरे खिलाफ काम किया है और नाकाम हुआ है। ठीक है। अच्छा नाजिद साहब, आपने मौलवियों के बारे में और उलेमा के बारे में जनरली आपने क्या कह सकते हैं कि आपकी ओपिनियन, आपकी राय कोई सही नहीं रही है, तो इसकी क्या वजह है? और आप रिलीजन के बारे में भी कोई ज्यादा अच्छी राय नहीं रखते हैं, हमने जिस तरह आपके इंटरव्यूज देखे, तो आप इसको किस तरह? चीजें ये है कि हम बुनियादी तौर पर बालूचिस्तान का नाम लेते हैं, या इधर पाकिस्तान में भी हर जगह पर हम सेक्युलरिज्म की हम हिमायत करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब लोगों ने लादीनियत लिया है, जो कि गलत है। सेक्युलरिज्म के दो तरीके हैं दुनिया में जो राइज है। मसलन इंडियन सेक्युलरिज्म है, तो वो लादीनियत नहीं है, बल्कि उसको कहेंगे नॉन सेक्टेरियन, गैर फिरकवारियत। अब यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में लादीनियत के मानों में भी लिया गया है, मजहब के खिलाफ भी किया, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज वगैरह में जो है इनके खिलाफ भी किया गया है। हम सेक्युलरिज्म इसलिए चाहते हैं कि ताकि मजहब की हिफाजत हो। देखे, किसी भी रियासत का अपना अकीदा होगा तो वहां माइनॉरिटीज जो है ना मार खाए, ये तय है। इसलिए रियासत का अपना कोई अकीदा नहीं होना चाहिए, रियासत का अपना अकीदा नहीं होना चाहिए। रियासत का फर्ज होना चाहिए कि लोगों के अकायद का हिफाजत करें। लोगों के अकायद का हिफाजत उस वक्त मुमकिन है जब रियासत का अपना अकीदा नहीं होगा। और फिर मजहबी आजादी से मुराद हमारा ये कि जैसे एक आम कॉमन बात की जाती है कि आप इतना हाथ ऊपर उठा सकते हैं, आप आजाद हैं, जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है तो वहां आपकी आजादी खत्म है। तो लिहाजा रियासत के ऊपर फर्ज बनता है कि वो लोगों के अकायद की हिफाजत करे, और लोग अपने अकायद में इतने आजाद हो कि वो अपना हाथ उठा सके, दूसरे के नाक तक नहीं। ये हमारा अकीदा। दूसरा आपने कहा जनाब वाली मजहबी लोगों के खिलाफ, उसकी वजह यह है कि हमारे इलाके के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ये मजहबी फसादात से हुआ, ठीक है, और बहुत कम खर्चे पर और बहुत आसान तरीके से जो है कोई भी आदमी मजहबी चीजों को उठाता है और चीजों को बर्बाद कर देता है। हमारी कौम बर्बाद हुई, हमारे लोग बर्बाद हुए, हमारी स्टेट को नुकसान पहुंच रहा है हर लिहाज से। हमारा सिस्टम हमारे जो समाज है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो हमारे एसेट्स को नुकसान पहुंच रहा है। तो हम नफरत ना करें तो इनके साथ किस तरह मोहब्बत करें? जबकि मजहब का मतलब होता है जनाब एक मुस्बित रवैया, जिसमें लोगों को जोड़ने का अमल होता है, उसमें प्यार मोहब्बत का अमल होता है, उसमें रोने का अमल होता है, ठीक है ना, उसमें गले लगाने का अमल होता है। यहाँ तो सारा उलट है, यहाँ तो मारदाट की बात है। ये तो शिद्दत पसंद जो है, ये इसको क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रुप से मजहब कहाँ है। और आपने ये भी देखा कि मजहबी अदारों की तरफ से इवन देन जो है करप्शन के खिलाफ बातें नहीं हुई, बल्कि करप्शन के हक में बातें हुई, और बहुत सारे लोग मजहबी प्रेशर ग्रुपों के थ्रू गैर कानूनी इंडक्ट हुए। और बहुत सारे ऐसी कबाहतें हैं कि इस पूरे अमल को मजहब से जोड़ना मजहब की तौहीन है हमारे नजदीक, इसलिए हम ये बातें करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ओपनली सेक्युलरिज्म की भी बात कर रहे हैं, फिर आपने नेशनलिज्म की बात करते रहे हैं, तो कभी आपको एस्टेब्लिशमेंट ने तंग किया है, या फिर आपको कोई
क्या कहेंगे, कोई प्रेशर, कोई टॉर्चर कभी हुआ है आप? अच्छा जनाब, मेरे ना बच्चे हैं ना बीवी है, ना मुझे खाने का प्रॉब्लम है ना पहनने का प्रॉब्लम है, फकीर आदमी हूँ। आखिर में बूढ़ा किस बात पर हुआ, आखिर में शुगर का मरीज किस बात पे हुआ? मेरे चेहरे पे अगर कोई उस तरह का जो है वो उदासी छाई हुई है तो उसके पीछे तो कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है, सवाए इसके कि मैं अंडर प्रेशर हूँ, इसमें क्या शक है। ठीक है। तो और वैसे जो लोग जो आपको फॉरेन एजेंट कहते हैं या गद्दार का वो कहते हैं, उनको आप क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? नहीं, इसमें ये होता है, मुझे खुशी की बात है कि लोग फिर भी मुझे कंसिडर करते हैं। अगर ये लोग गद्दार भी न कहे, फॉरेन एजेंट भी न कहे, कुछ भी न कहे, तो मैं तो वैसे भी जीरो हो जाऊंगा। ठीक है ना। ये जो एजेंसियां दूसरे लोग और मेरे मुखालिफिन इस तरह का काम करते हैं तो फिर एक एनर्जी मुझे मिल जाती है। कभी कभी मैं थक भी जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थकन का शिकार होकर डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं से कोई मुखालिफत की बात सामने आ जाती है, कोई सिकंडलाइज हो जाता हूँ और मुझे प्रॉब्लम आता है, फिर एनर्जी आ जाती है और फिर मैं शुरू करता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा है। वो जो एक बात की गई ना कि तुझे क्या कहते हैं, तुंदही बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, वो तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और हमारे बहुत ज्यादा गिलगित में कामयाबियां न होना और बहुत सारी नाकामियों के पीछे ये बात हुई कि हमारी कौम के मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग हमसे हमदर्दी करते रहे। काश की गिलगित में हमारे खिलाफ कोई कुव्वत उठती, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके होते। जैसे MQM के खिलाफ ताकतें उठी, वो बहुत ज्यादा उन्होंने तरक्की किया और बहुत सारे लोग। जबकि गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी, चाहे वो फिरकवाराना तौर पर कोई सुन्नी हो, शिया हो, जामर का आदमी हो, बल्तिस्तान का आदमी हो, हुंजा का आदमी हो, सबके दिलों में कहीं ना कहीं हमारे लिए हमदर्दी है, जिसकी वजह से जो है हम उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मुखालिफत जो है पब्लिक में से नहीं है। हमारी मुखालिफत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है, तो इस्टेब्लिशमेंट से लोग दिल ही दिल में सब नफरत करते हैं। तो इस वजह से हमारी मुखालिफत में भी एक ऐसी कोई टीम नहीं बनी जिसकी वजह से हम फल फूल सके। तो ये भी जरूरी है, इस तरह होना चाहिए और मेरे साथ ये होता है। उस वजह से तो मैं जिंदा हूँ पॉलिटिक्स में, वरना दूसरे लोगों की तरह मैं भी कब का मर चुका होता। ठीक है। अच्छा, BNF की जो है बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? इसमें ये तो बुनियादी एक चीज ये है जनाब आली कि हमारी फंडिंग न होने की वजह से, पहले मैंने आपको बात बता दी कि मुखालिफत और हिमायत और इन चीजों की, जिसकी वजह से मैं किसी गलतफहमी का तो शिकार नहीं होना कि BNF ने बहुत ज्यादा जो है अचीव किया है या बहुत ज्यादा डिलीवर किया, नहीं किया। उसके पीछे भी ये चीज है कि बहरहाल आप जितना हक हलाल के तहत भी चले, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा फंड चाहिए, आपको खाने पीने के लिए, आपको चलने के लिए। ये चीजें ना होने की वजह से लेकर फंड्स ना हम बल्तिस्तान पहुंच सके, ना दियामर पहुंच सके, ना हुंजानगर पहुंच सके, ना अस्तूर पहुंच सके। और गेजर और गिलगित में हमारी जाती प्रेजेंस होने की वजह से आप देख रहे हैं वहां पर BNF काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे पास कुछ वसाइल होते और हम गेजर गिलगित की तरह हम थोड़ा वक्त सिकरदू में भी देते, थोड़ा वक्त हम चलास में भी देते, थोड़ा वक्त अलियाबाद नगर वगैरह में भी देते, अस्तूर में, तो अभी वहां पर भी हमारे लोग हैं। अच्छा, गेजर गिलगित के मुकाबले में ज्यादा अवेयर लोग वहां बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग वहां बैठे हुए, ज्यादा नेशनलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो वजह तो ये लेकर फंडिंग है। ठीक है। तो आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है गजर तक, स्पेशली वो फंडिंग की वजह से, क्योंकि गजर में जाती तौर पर मुझे घर में रहना होता है, तो लोग मेरा इर्द गिर्द है ना। अगर मैं अस्तूर में भी जाके मैं 1 महीना बैठ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा, तो जाहिर है गजर की तरह अस्तूर के लोग भी मेरे साथ ही आएंगे। उनमें भी वही जज्बा है, वही बातें हैं, वही ख्वाहिशात है।